Attention, students of ICC Class 9 and 10 and Intermediate First Year. Do subscribe to Study with Sudhir YouTube channel where we cover English literature, history, civics, geography, biology and English grammar and many important motivational videos too. Don't forget to click on the bell icon so that you can get regular updates. हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुधीर। स्टडी में सुधीर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट के भाग 2 पर। हमने भाग पहले में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूरी तरह से पढ़ा। उसके बाद साथ हमने ये भी जाना कि विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर महात्मा गांधी एंड हिज इनिशियल डेज इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड अबाउट सत्याग्रह, अबाउट नॉन वायलेंस, अबाउट अहिंसा and the entire doctrine of mass movement. So those are the things which we read in part 1. So मेरी आपसे गुजारिश ये है कि भाग 2 देखने से पहले you do make it a point to see part 1 of this video so that you can understand it in continuation. So we have discussed about the reasons why, the three main reasons which led to the non-cooperation movement, what happened during the non-cooperation movement, and today we will be now looking in this part 2 of this entire Mahatma Gandhi and the national movement chapter about what were the reasons why the non-cooperation movement came to a rather abrupt end. So what happened was, because the government was taken aback by the power and the magnitude of the non-cooperation movement, it took several measures to repress the movement. That movement को पूरी तरह से एक तरह से दबा दिया जाए। And गांधी जी की एक तरह से आह्वान की वजह से काफ़ी लोग जेल जाने लगे, तो एक तरह से जेल का डर भी लोगों की मन से निकल गया, लोगों के दिमाग से निकल गया, और एक तरह से जेल जाना एक तरह से प्रेस्टीज सिंबल बन गया। इट ऑलमोस्ट लाइक बिकेम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड ऑल इंपॉर्टेंट लीडर्स एक्सेप्ट गांधी जी वर एक्चुअली पुट इन जेल एट दैट पॉइंट इन टाइम. Processions and public meetings were banned all over India, and the Khilafat movement as well as the Congress were declared as illegal organizations. But then on February 12, 1922, something happened which completely changed the entire character of the non-cooperation movement, and the non-cooperation movement was called off. So let's look at what happened on February 12, 1922, which was such a dramatic day as far as this movement was concerned. Now, Chauri Chaura is a village in Gorakhpur district of modern day Uttar Pradesh, right? So Chauri Chaura में February 5, 1922 को a procession of about 3,000 peasants, 3,000 किसान पुलिस स्टेशन की तरफ निकले, क्योंकि उनको रोष था कि जिस एक तरह से जो वहाँ पर शराब की जो दुकान थी, शराब का जो ठेका था, उसके खिलाफ वहाँ पर 3,000 काफ़ी सारे किसानों ने आंदोलन किया था, और उस समय पर एक पुलिस अफसर ने कुछ वॉलंटियर्स को मारा था. He had beaten up some volunteers, he had assaulted some volunteers. So as a result of that, in protest, 3,000 farmers marched to the Chauri Chaura police station. Okay, at which point in time the police fired at those farmers. And this led to anger among the demonstrators. Despite Mahatma Gandhi insisting on a non-violent way of struggle, these demonstrators got angry, violated one of the basic principles of the non-cooperation movement, and they set the nearby police station on fire. As a result of which, 22 policemen who were inside that police station got burnt alive. Again, as I told you in part 1 of this chapter, please look at this very dramatically short scene in the film Gandhi so that you will get an idea about what really happened in Chauri Chaura, and that had an impact on the non-cooperation movement. So 22 policemen को वहाँ पर जिंदा जला दिया गया, and this was a very violent incident. Mahatma Gandhi was completely against it because he believed in ahimsa, and he withdrew the non-cooperation movement a week after that incident on February 12, 1922. So it came to an abrupt end. Now, महात्मा गांधी के इस निर्णय से काफ़ी सारे लोग, नेता जो कांग्रेस के थे, वे सहमत नहीं थे. मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, या लाला लाजपत राय, खास तौर पे उन्होंने इसकी आलोचना की. दे क्रिटिसाइज दिस डिसीजन टेकन बाय महात्मा गांधी. सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड इट ए नेशनल कैलामिटी बिकॉज उनके मन में यह था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से अंग्रेजों पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था, और इस दबाव को
अचानक निकाल देना एक तरह से ठीक बात नहीं है, सही निर्णय नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने चूंकि इस तरह की हिंसा चौरी चौरा में हुई और वे पूरी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एक तरह से प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो तुरंत समाप्त कर देंगे। और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को उस समय पर कहा कि इफ द थिंग हैड नॉट बीन सस्पेंडेड वी वुड हैव बीन लीडिंग नॉट ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल, the cause will prosper by this retreat. उनका मानना ये था, गांधी जी was not in agreement with Motilal Nehru or Lala Lajpat Rai or Subhash Chandra Bose, and he told Jawaharlal Nehru that if we were continuing to lead this will no longer be a non-violent struggle because of what happened in Chauri Chaura. And he believed that as a result of this retreat, that is this stopping of the non-cooperation movement, the entire independence movement will gain in strength, is what Mahatma Gandhi strongly believed. Everybody respected his decision, even though they did not completely agree with what he had done. So Gandhiji suspended the law-breaking part of the movement and asked congressmen to pay attention to constructive programs, which is removal of untouchability, Hindu-Muslim unity, and popularization of both Swadeshi and Khadi. And he was arrested on March 10, 1922, less than a month after he had suspended the non-cooperation movement, and sentenced to 6 years of imprisonment, though he came out after 2 years because of his ill health. Now, अब हम देखेंगे कि इस पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 और 1922 के बीच में हुआ, उससे किस तरह का इंपैक्ट हुआ पूरे भारत पर और पूरी तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन पर। पहला बड़ा इंपैक्ट ये था कि नेशनल मूवमेंट बिकेम ए मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब ये है कि सारे लोग एक तरह से जुड़ गए कि भारत को किसी भी तरह से अंग्रेजों से मुक्त करना है, आज़ादी चाहिए। तो इट बिकेम ए मास मूवमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी सच एज फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड विमेन। इट वॉज नॉट ओनली द इलीट पीपल। अगर हम पहले के जो चैप्टर्स देखें, जब दादा भाई नेहरू जैसे नेता थे, वो एक तरह से मोर इलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी विच वॉज लीडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से महात्मा गांधी ने ये तय कर लिया कि सारे लोग एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ गए। गांधी जी Nehru described non-cooperation as a peaceful rebellion. As a peaceful rebellion, a most civilized form of warfare and yet dangerous to the stability of the state, that is the British rule. हो सकता है परीक्षा पत्र में आपको सिर्फ ये कोट दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये कोट किसका था और किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया था, तो आपको ये कोट याद रखना जरूरी है और किसने कहा था और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, और इसको एक तरह से पर्सपेक्टिव में डालना भी जरूरी बन जाता है। तो नेहरू का ये कोट आप अवश्य याद रखिए कि ही डिस्क्राइब नॉन कॉपरेशन एज अ पीसफुल रेबेलियन, a most civilized form of warfare and yet dangerous to the stability of the state, that is the British rule. दूसरा जो बड़ा impact था, that it instilled confidence among the people. It generated a desire for freedom कि हमको आज़ादी चाहिए, and inspired people to challenge the British rule. बिपिन चंद्रा जो कि हिस्टोरियन थे बंगाल से, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दिस अटेम्प्ट टू डिफाई ओपनली द फॉरेन रूलर्स एंड द गवर्नमेंट दे हैड सेट अप वाज बॉर्न ए न्यू सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। सो एक काफी आत्मविश्वास आ गया था और एक तरह से अपने ऊपर एक तरह का प्राइड भी आ गया था कि हम ये कर सकते हैं, ये हमारे से मुमकिन हो सकता है। तो ये कहा था बिपिन चंद्रा जो कि एक काफी बड़े इतिहासकार थे। तीसरा था कांग्रेस बिकेम ए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अभी तक तो एक तरह से it was just another political party kind of thing which was aimed at getting the people independence of India, but now it became a revolutionary movement. From a deliberative assembly it became an organization for action. चौथा इम्पैक्ट, इट फॉस्टर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द खिलाफत मूवमेंट का जो जुड़ गए थे और उसकी वजह से भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी गॉट स्ट्रेंथेंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म्स सच एज रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, डायरेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन, वेरियस नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर सेट अप, एंड boycott of foreign goods became an anthem, and khadi became the symbol of the Indian national movement. So these were the major impact of the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होना था। तो किस तरह के जो फैक्टर्स थे वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ भारत को लेके गए। सो महात्मा गांधी ने 1930 में, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने के 8 साल बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कॉल दिया।
दिस मूवमेंट वॉज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खास तौर से क्या अंतर था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट which was in 1921 and 1922 sought to bring the working of the government to a standstill by not cooperating with the administration, कि हम सरकार को चलने नहीं देंगे क्योंकि हम सरकार के साथ एक तरह से कॉपरेशन नहीं करेंगे, एक तरह से सहायता नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एन अटेम्प्ट टू पैरालाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, कि सरकार बिल्कुल चले ही ना बाय ब्रेकिंग सम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, की जितने भी उसके नियम हैं उसका हम उल्लंघन करें। द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर these ones. The first one and the most important one, which can also come as a 2-mark question, is the Simon Commission. साइमन गो बैक का नारा आपने सुना होगा। तो साइमन कमीशन इन नवंबर 1927, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरू होने के 3 साल पहले, नवंबर 1927 में the British government appointed the Indian Statutory Commission, which was popularly known as Simon Commission because of Sir Simon who was heading the commission. सर जॉन साइमन उनका पूरा नाम था। तो उनका बेसिक मैंडेट ये था कि क्या भारत को, हालांकि वे एक कॉलोनी है, उसमें ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है या नहीं। द कमीशन वॉज कंपोज्ड ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ऑल वाइट कमीशन, जिसकी वजह से इसको ऑल वाइट कमीशन भी कहा जाता था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और दिस वॉज सीन एज ए वायलेशन of the principle of self determination and a deliberate insult। एक तरह से इंसल्ट किया गया था भारतीयों की सेल्फ रेस्पेक्ट को, एक तरह से उसको डेलिबरेटली इंसल्ट भी किया गया था। नाउ एट द 1927 मद्रास सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, which was presided over by Dr. Ansari, the Congress decided to boycott this commission at every stage, कि वे साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस का इसमें साथ दिया और फरवरी 3 को जब ये कमीशन, साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा, तो उस दिन पूरी तरह से पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन भी किया गया था और काफी सारे काले झंडे भी लहराए गए। उस पर लिखा गया था साइमन गो बैक। और उस समय लाहौर रेलवे स्टेशन पे उसी दौरान अक्टूबर 30, 1928 में जब ये पूरा साइमन कमीशन के अगेंस्ट जितने भी आंदोलन पूरे शहरों में, काफ़ी सारे शहरों में चल रहे थे, अक्टूबर 30, 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाला लाजपत राय को मारा गया और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। सो साइमन कमीशन की वजह से लाला लाजपत राय एक तरह से शहीद हो गए। साइमन कमीशन ने किस तरह का रिकमेंडेशन दिया था उस टाइम के भारत में? उनका कहना था कि जो जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें ज़्यादा सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये एक तरह से खास रिकमेंडेशन की गई थी साइमन कमीशन द्वारा। दूसरी जो प्रमुख रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की थी वे थी कि एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज टू कंटिन्यू, यानी कि हिंदुओं को इतना कोटा, मुस्लिम्स को इतना कोटा, ईसाइयों को इतना कोटा, सिखों को इतना कोटा। तो एक तरह से कम्युनली रिप्रेजेंटेटिव, ताकि उनको लग सके कि हम हिंदू मुस्लिम एक तरह से रिलीजन के बेसिस पे लोगों को, भारतीयों को बांट सके। तो ये था साइमन कमीशन के 2 प्रमुख रिकमेंडेशन। बाकी भी रिकमेंडेशन थे लेकिन ये 2 मेन रिकमेंडेशंस माने जाते हैं। इसके बाद आई नेहरू की रिपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में। ये सब हम पढ़ रहे हैं जितने भी कॉजेस थे, द रीजंस व्हिच लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ नेहरू की रिपोर्ट में ये कहा गया 1928 में कि हमको भारत को एटलीस्ट डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए, पूर्ण स्वराज ना भी मिले लेकिन डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए। और दूसरा ये होगा कि अगले सेशन में, जो लाहौर का सेशन 1929 में था, उसमें एक कदम और बढ़ गए। He moved a little step forward and they said that the Calcutta session of the Congress served an ultimatum to the British government to accept the report, Nehru report, by the end of 1929 और face a mass movement towards civil disobedience की भूमिका एक तरह से बना रहे थे। Since 1 year time limit set at the Calcutta session expired in Lahore, the Nehru report was said to have lapsed, and at the Lahore session of the Congress in 1929 it passed a resolution saying हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, that is complete independence will be the objective of the Congress, पूर्ण स्वराज, full freedom,
And on the night of December 31, New Year's Eve 1929, Jawaharlal Nehru led a procession to the banks of the river Ravi in Lahore, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और वहां पे उन्होंने तिरंगा लहराया वहां पर, और उन्होंने कहा कि इट इज अ क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड एनी लॉन्गर टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। तो एक तरह से पूर्ण स्वराज को मांग को वहां पर रीट्रेट किया गया, और वहां पर यह कहा गया कि 26 जनवरी को वे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, और उस दिन सभी जगहों पर ट्राइकलर फ्लैग को लहराया भी जाएगा। यही एक कारण है कि 26 जनवरी लेटर ऑन बिकेम, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, बिकेम द रिपब्लिक डे फॉर इंडिया फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। सो 26 जनवरी को उस टाइम पे कहा गया कि ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा, और इसका निर्णय लिया गया था दिसंबर 31, 1929 1929 ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन लाहौर अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो ये था as far as the this thing. And now we come to the civil disobedience movement. Now civil disobedience movement, the decision to start the civil disobedience movement was taken in 1930, and many programs were planned as a result of the civil disobedience movement that we will do in part 3 of the Mahatma Gandhi and the national movement video lesson. So do tune into that, do subscribe to the channel, do press on the bell icon, and as I said, do these 2 chapters first before we go on to the third part, in which we'll read about the different aspects whatever happened as part of the civil disobedience movement, the round table conference, especially the second and the first round table conference, the Gandhi-Irwin Pact, the progress of the movement and the impact of the civil disobedience movement, उसके बारे में हम पूरी तरह से पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।